अब हमने देखा जितने भी मैग्नेटिक सब्सटेंस हमारे पास है, देयर आर थ्री कैटेगरीज ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस अकॉर्डिंग टू फैराडे. वन इज कॉल्ड diamagnetic substances, second is called paramagnetic substances, and the third one is called ferromagnetic substances. Is this clear to you? So there are three categories of magnetic materials. Okay, and now we will discuss their properties one by one in detail. And first we will discuss the properties of diamagnetic substances. Properties of diamagnetic substances. ठीक है? ओके. तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है अभी हमने देखा, वो सब्सटेंस जिस सब्सटेंस को मैग्नेट रिपेल करे उसी को डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं. तो यही पहली प्रॉपर्टी बन गई इसकी. क्या? ऑल सब्सटेंसेस और ऑल डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर रिपेल्ड बाय a magnet. Repelled by a magnet. This is clear? ये पहली प्रॉपर्टी है. Now the question arises here, why diamagnetic substances are repelled by a magnet? इनको मैग्नेट रिपेल क्यों करता है? इसको समझने के लिए हम एटॉमिक लेवल पे जाएंगे. ठीक है? And as you know, in each atom there are number of electrons and each electron is revolving in certain permissible orbits which are called stationary orbits according to Bohr's theory of atom model. ठीक है? Okay, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है. It is revolving around the nucleus. Is this clear? In a fixed orbit, in an orbit. Is this clear to you? Therefore, the motion of electron is called orbital motion. इस motion को हम orbital motion कहते हैं. The electron is not only having this orbital motion, it is also rotates about its own axis. Like the electron है, it is also rotating about its own axis. And इस motion को हम कहते हैं spin motion. Spin motion. Is this clear to you? So जो इलेक्ट्रॉन होता है एटम में, हर एक इलेक्ट्रॉन जो होता है एटम में, it possesses two types of motion. One is orbital motion, second is spin motion. तो orbital motion की वजह से it acts as what? This orbital electron will act as what? Current loop. So it acts as a magnetic dipole. इसका magnetic dipole moment भी होगा. Is this clear? तो जो इसका magnetic dipole moment होगा, this orbital motion contributes to the magnetic dipole moment. उसको हम कहते हैं orbital magnetic dipole moment. And is represented by mu L. Is this clear? इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन मोशन होती है, it also contributes to the magnetic dipole moment. उसको हम कहते हैं स्पिन magnetic dipole moment. तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं mu s से. ये भी वेक्टर क्वांटिटी है. Is this clear? तो it means that जो इलेक्ट्रॉन है, it possesses two types of motion. ठीक है? One is orbital motion, second is spin motion. तो orbital motion की वजह से magnetic dipole moment होगा, उसको हम कहते हैं orbital magnetic dipole moment. और जो spin motion की वजह से magnetic dipole moment होगा, उसको हम कहते हैं spin magnetic dipole moment. And this spin magnetic dipole moment is the inherent property of an electron. Is this clear? Okay. अब एटम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, number of electrons are there. अब जो एटम का नेट डायपोल मोमेंट अगर मेजर करना होगा, नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ एन एटम, वो किसके बराबर होगा? वो होगा वेक्टर सम ऑफ ऑर्बिटल magnetic dipole moment and spin magnetic dipole moment of all the individual electrons. जो जितने भी इसमें individual electrons है, उनकी वजह से जो magnetic dipole moment होगा, orbital magnetic dipole moment होगा या spin magnetic dipole moment होगा, उनका जो वेक्टर सम होगा वही होगा net magnetic dipole moment of an atom. यानी कि वेक्टर सम ऑफ orbital magnetic dipole moment and spin magnetic dipole moment of all the individual electrons जो होगा वही होगा net
मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ एन एटम। अब अगर हम एटम ले लेंगे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का, तो उसके लिए अगर हम नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मेजर करेंगे विच इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ this orbital magnetic dipole moment and separate magnetic dipole moment of all the individual electrons, वो it comes out to be zero. Is this clear to you? For what? For diamagnetic atom. For an atom of diamagnetic substance. Is this clear to you? It comes out to be zero. So इसका मतलब क्या हुआ, जो नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है इंडिविजुअल एटम्स और मॉलिक्यूल्स possess zero net magnetic dipole moment। जो इंडिविजुअल एटम्स होते हैं, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स होते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के उनका जो नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है वो जीरो के बराबर होता है। इज दिस क्लियर? अब अगर यही डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये मैग्नेटाइज होता है, जो हमने पहले डिस्कस किया है वो मैग्नेटाइज होता है। अब हम देखेंगे वो क्यों मैग्नेटाइज होता है, कैसे मैग्नेटाइज होता है। इज दिस क्लियर टू यू? ओके, उसको समझने के लिए अब हम क्या करेंगे, फिर से हम एटम लेवल पे जाएंगे। हम एक एटम कंसीडर करेंगे। किसका एटम कंसीडर करेंगे? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का एटम कंसीडर करेंगे। तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और हर इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल मोशन होती है, स्पिन मोशन होती है, फिर उनका अलग अलग जो मोशन होती है। अब हर एक इलेक्ट्रॉन की मोशन हम कंसीडर नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, द मोशन ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स in an atom of a diamagnetic substance can be reduced to the motion of two electrons revolving with same angular velocity, moving with same angular velocity in an orbit of same radius. Is this correct? But in opposite stands. हम दो इलेक्ट्रॉन कंसिडर करेंगे। यहाँ पे मैं दिखा दूंगा, एक ऑर्बिट यहाँ पे बनाएंगे, ऐसा ही दूसरा ऑर्बिट यहां पे बनाएंगे, सेम ऑर्बिट। इज दिस क्लियर? ओके, दो ऑर्बिट हमने कंसीडर कर दिए, दोनों का रेडियस सेम है, ठीक है। ओके, जितना रेडियस इसका है उतना ही रेडियस इसका है। यहां पे भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। इज दिस क्लियर? ओके, एंड नाउ हियर इन दिस केस सपोज इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन क्लॉकवाइज सेंस इन दिस ऑर्बिट, एंड यहां पे भी इलेक्ट्रॉन हम कंसिडर करेंगे। मान लीजिए यहां पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, यहां पे क्लॉकवाइज सेंस में, यहां एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। इज दिस क्लियर? ओके, सपोज यहां पे इसकी वेलोसिटी है, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट दिस पॉइंट वुड बी टेंजेंट टू द ऑर्बिट। सपोज v विद द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इज दिस क्लियर? यहां पे भी वेलोसिटी है v, दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम है, रेडियस या इस ऑर्बिट का भी वही है, इस ऑर्बिट का वही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एरिया इज सेम। इज दिस क्लियर? तो इस इलेक्ट्रॉन की वजह से दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम है, तो इस इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट होगी इसमें उतनी करंट यहां पे भी होगी, बिकॉज सेम एंगुलर वेलोसिटी से ये मूव कर रहे हैं और रेडियस भी सेम है। इज दिस क्लियर? अब यहां पे देखेंगे जो करंट है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, कन्वेंशनल करंट, उसकी डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में यहां पे। इन दिस केस जो करंट की डायरेक्शन होगी वो होगी क्लॉकवाइज सेंस में, यहां पे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, यहां पे क्लॉकवाइज सेंस में करंट होगी, डायरेक्शन ऑफ करंट। इज दिस क्लियर? ओके,
अब दिस एक्ट्स एज ए करंट लूप, दिस आल्सो एक्ट्स एज ए करंट लूप, ठीक है ना। तो इसका भी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा, इसका भी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा, दोनों का एरिया बराबर है, दोनों में करंट बराबर है, इज क्लियर। तो दोनों का जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा वो भी बराबर ही होगा, इज क्लियर। अब उनकी डायरेक्शन देखेंगे, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज गिवन बाय द राइट हैंड थंब रूल। तो अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड थंब रूल, इन दिस केस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज वर्टिकली अपवर्ड्स, ठीक है। दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इज दिस क्लियर, ओके। अब देखेंगे इन दिस केस करंट इज क्लॉकवाइज सेंस में, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, इज दिस क्लियर, ओके। जितना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इस इलेक्ट्रॉन की वजह से, उतना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इस इलेक्ट्रॉन की वजह से है। दोनों का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इक्वल है और अपोजिट है। तो व्हाट इज नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, नेट, यहां पे नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो होगा, नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वो 0 के बराबर है। उसी तरह से 0 के बराबर है जिस तरह से एटम ऑफ ए डायमेट्रिक सबस्टेंस का डायपोल मोमेंट 0 के बराबर होता है, इज दिस क्लियर। इसलिए हमने इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, हर एक इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल मोशन है, सिंगल मोशन है, तो हर एक इलेक्ट्रॉन की मोशन हमने रिड्यूस की है इसी वजह से इनटू व्हाट द मोशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, इज दिस क्लियर, ओके। अब हम देखेंगे बिहेवियर ऑफ डायमैग्नेटिक सबस्टेंस या एन एटम ऑफ ए डायमैग्नेटिक सबस्टेंस। तो अब हम क्या करें, कहां पे, इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे परपेंडिकुलर द ऑर्बिट ऑफ प्लेन ऑफ द ऑर्बिट, ओके, ऐसे परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ऑर्बिट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई करेंगे। अप्लाई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द plane of the orbit, is this clear? Suppose B is the applied magnetic field, uniform magnetic field. अब हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया। अब इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है परपेंडिकुलर डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस द इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस व्हाट, इट विल एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फोर्स, जिसको हम कहते हैं लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स, इज दिस क्लियर टू यू। इट विल एक्सपीरियंस Lorentz magnetic force, ठीक है, Lorentz magnetic force FB, is this clear to you? Okay, इस पे भी this electron experience what, Lorentz magnetic force, and ये इलेक्ट्रॉन भी experience करेगा Lorentz magnetic force because they are moving in uniform magnetic field, perpendicular direction of magnetic field. As their velocity is perpendicular direction of magnetic field, therefore the force experienced by these electrons, magnetic force experienced by these electrons, उनकी जो डायरेक्शन होगी, it is defined by the Fleming's left hand rule. Is this clear? So according to Fleming's left hand rule, the direction of the Lorentz magnetic force experienced by this electron, पहले देखिए यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, तो जो इस पे मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी according to Fleming's left hand rule. What is the direction of current? The middle finger gives the direction of current. It is, यहां पे देख, इस पॉइंट पे देखेंगे, डायरेक्शन ऑफ करंट कहां है, इट इज परपेंडिकुलर इनवर्ड्स, इस तरह से, ठीक है, ओके। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ द ऑर्बिट, इज दिस क्लियर। तो इस तरह से होगा। सो थंब की डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स द सेंटर, इज दिस क्लियर टू। ये होगी डायरेक्शन ऑफ व्हाट, magnetic force, is this clear to you, experienced by the electron which is revolving in which direction, in clockwise sense, is this clear to you। तो इस पे जो magnetic force एक्ट करेगा उसकी डायरेक्शन होगी towards the center of the orbit, is this clear। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स है, तो इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स, इतना ही मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करेगा, एक्ट करेगा, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड्स, इज दिस क्लियर टू यू। उसकी डायरेक्शन होगी आउटवर्ड्स, एफ बी। उतना ही फोर्स इस पे भी एक्ट करेगा बट आउटवर्ड्स, जितना फोर्स इस पे एक्ट करता है इनवर्ड्स टुवर्ड्स द सेंटर। अब देखिए यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है तब ये सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेगा, इज दिस क्लियर टू यू। तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होती है, एम वी स्क्वायर बाय आर, इज दिस क्लियर।
तो इस इलेक्ट्रॉन पे भी इतनी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रही है, इस इलेक्ट्रॉन पे भी इतनी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रही थी बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो एक और फोर्स इस पे एक्ट कर रहा है, यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फोर्स इस पे एक्ट कर रहा है किस डायरेक्शन में, टुवर्ड्स द सेंटर। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स की भी यही डायरेक्शन होती है। जब इस पे एक और फोर्स अप्लाई करेंगे टुवर्ड्स द सेंटर तो सेंट्रीपिटल फोर्स इंक्रीज हो जाएगा यहाँ पे। इन दिस केस द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स विल इंक्रीज। इज दिस क्लियर? सो व्हाट विल हैपन हियर, इन दिस केस द मैग्नेटिक फोर्स जो है इट एक्ट्स आउटवर्ड्स, ठीक है ना, रेडियली आउटवर्ड्स ऑन इलेक्ट्रॉन। सो इन दिस केस जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा विच एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, तो इस फोर्स की वजह से वो डिक्रीज हो जाएगा। इन दिस केस द सेंट्रीपिटल फोर्स विल इंक्रीज, इन दिस केस द सेंट्रीपिटल फोर्स विल डिक्रीज ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फोर्स। इज दिस क्लियर? तो जब यहां पे इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना, अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स इंक्रीज हो गया, रेडियस इज फिक्स्ड, ये ऑर्बिट से बाहर नहीं निकलेगा, mass of electron is fixed, ये भी चेंज नहीं होगा, then what will happen, the velocity will increase increase in Fc causes increase in the speed or velocity of an electron. Is this clear? तो यहां पे क्या होगा, यहां पे उल्टा होगा ठीक है ना, क्योंकि यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स डिक्रीज हो रही है, Fc decreases in this case, therefore जो वेलोसिटी होगी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी डिक्रीज हो जाएगी। इज दिस क्लियर? अब यहां पे इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इसकी वजह से करंट है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉजेज इंक्रीज इन करंट, एंड इंक्रीज इन करंट कॉजेज द इंक्रीज इन द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो इंक्रीज हो जाएगा पहले ये इतना था, अब थोड़ा सा और इंक्रीज हो जाएगा। सपोज दिस इज द डेल्टा म्यू, इंक्रीज इन द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट यहां से यहां तक। सो व्हाट इज द न्यू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट? अब न्यू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होगा, म्यू प्लस डेल्टा म्यू। इज दिस क्लियर? ओके, एंड नाउ इन दिस केस यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो डिक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से स्पीड या वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी डिक्रीज हो जाएगी। तो जब स्पीड डिक्रीज हो जाएगी तो उसका मतलब ये है जो करंट है इसमें इस इलेक्ट्रॉन की वजह से वो भी डिक्रीज हो जाएगी, एंड डिक्रीज इन करंट कॉजेज डिक्रीज इन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, पहले यहां था अब ये यहां तक आ जाएगा। इज दिस क्लियर? ये इतना डिक्रीज हो गया, तो यहाँ पे अब जो न्यू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा वो होगा म्यू माइनस डेल्टा म्यू। जितना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इसमें इंक्रीज हुआ उतना ही मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट यहाँ पे डिक्रीज होगा, क्योंकि दोनों पे इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स एक्ट करता है, बट इन अपोजिट सेंस, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। इज दिस क्लियर? तो जितना यहाँ पे डिक्रीज हुआ उतना ही यहाँ पे इंक्रीज हुआ। इज दिस क्लियर यू? सो व्हाट इज द ओवरऑल नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट? अब देखेंगे नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। नेट मैग्नेटिक dipole moment of the atom in uniform magnetic field। अब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में देखेंगे इसका नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होगा, वो किसके बराबर होगा, जरा बताइए, वो होगा किसके बराबर? यहाँ पे कितना है, व्हाट इज द नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ दिस ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन? इट इज म्यू प्लस डेल्टा म्यू, ठीक है। इसकी वजह से जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है मैग्नेटिक फील्ड और इसकी वजह से वो अपोजिट है आपस में, इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है, इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो माइनस हो जाएगा, माइनस व्हाट, म्यू माइनस डेल्टा म्यू। यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा म्यू बी द ट्वाइस डेल्टा म्यू विल बी द नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। इज दिस क्लियर टू यू? सो इट मीन्स दैट जब हम यही सबस्टेंस
डायमैग्नेटिक सब्सटेंस या डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का एक एटम या पूरा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जब हम ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इसमें नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाता है। ये इंड्यूस हो गया ट्वाइस डेल म्यू। इज दिस क्लियर टू यू? ट्वाइस डेल्टा म्यू इज द नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इंड्यूस्ड इन ईच एंड एवरी atom or molecule of the diamagnetic substances of a diamagnetic substance. Is this clear to you? When subject to a strong external magnetic field. जब हम strong external magnetic field अप्लाई करते हैं हर एक एटम में नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाता है। तो ये एक और प्रॉपर्टी हो गई। Is this clear? ओके, तो यहां पे लिखेंगे नेट, इट इज थर्ड प्रॉपर्टी, net magnetic dipole moment induces in each atom, ठीक है, in external magnetic field। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब हम रखते हैं हर एक एटम में नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इंड्यूस होता है। अब किस डायरेक्शन में इंड्यूस होता है? अब यहां पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड हमने ऊपर से नीचे की तरफ अप्लाई किया तो ऊपर वाला जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो इंक्रीज हुआ, नीचे वाला डिक्रीज होगा। जो नेट होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? उसकी डायरेक्शन होगी, जो नेट होगा उसकी डायरेक्शन होगी ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ नेट डायपोल मोमेंट, नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट म्यू डेल्टा, जो ट्वाइस डेल्टा म्यू है उसकी डायरेक्शन क्या है? ऊपर की तरफ, क्योंकि ये वेक्टर बड़ा है ये वेक्टर छोटा है। इज दिस क्लियर? तो जो इंड्यूस हुआ वो किस डायरेक्शन में इंड्यूस हुआ? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ applied magnetic field. Is this clear? Net magnetic dipole moment induces in each atom in external magnetic field in a direction opposite to the direction of applied magnetic field. हर एक एटम में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इंड्यूस होता है किस डायरेक्शन में? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। इज दिस क्लियर टू यू? तो ये एक और प्रॉपर्टी होगी, इसका बिहेवियर हो गया। अब इंड्यूस हो गया हर एक एटम में किस डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो यही वजह है कि जब हम एक बार मैग्नेट के नजदीक रखते हैं ईस्ट ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, अगर यहाँ पे नॉर्थ होगा यहाँ पे साउथ होगा, तो अगर नॉर्थ जो एंड ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का क्लोज टू नॉर्थ पोल होगा उस फेस पे नॉर्थ पोल ही अपेयर हो जाएगा, तो दूसरा जो अपोजिट फेस होगा वहां पे साउथ पोल अपेयर होता है। इज दिस क्लियर टू यू? सो इसका मतलब ये हुआ ये भी मैग्नेटाइज हो गया किस डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, यहाँ पे भी फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ है। तो यहाँ पे इसका जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का है इट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और यहाँ पे जो इंड्यूस होता है उसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। इज दिस क्लियर टू यू? सो इसीलिए मैंने लिखा यहाँ पे जो नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इंड्यूस होता है इन ईच एटम वो होता है किस डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। इज दिस क्लियर? ओके, अब एक और प्रॉपर्टी इसकी हम डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 4। इट इज अबाउट द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। Magnetic susceptibility क्या है? It is an important property of a magnetic substance. It determines how easily the magnetic substance gets magnetized when subject to a magnetizing field. जब हम किसी substance को magnetizing field में रखते हैं वो magnetize हो जाता है, as you know, ठीक है? अब ये कितना easily और कितना strongly magnetize होता है और किस direction में magnetize होता है वो हमें बताता है magnetic susceptibility. It is a property of this magnetic material. Is this clear? अब जहां तक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का ताल्लुक है वो आपने देखा कि वो मैग्नेटाइज होता है, बहुत वीकली मैग्नेटाइज होता है, फीबली मैग्नेटाइज हो जाता है,
ठीक है, और वो भी अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है। जब हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तब जाके थोड़ा बहुत वो मैग्नेटाइज होता है इन द डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। इज दिस क्लियर टू यू? तो इसका मतलब है जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है ऑफ व्हाट डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, वो क्या है, इज स्मॉल एंड इज नेगेटिव। तो नेगेटिव का मतलब है ये मैग्नेटाइज होता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। इज दिस क्लियर? तो एक और प्रॉपर्टी है इसके साथ, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो अगर हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक सैंपल ले लेंगे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का, वो रखेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। लेट्स कंसीडर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हियर represented by equally spaced parallel lines. इक्वली स्पेस्ड पैरेलल लाइंस है, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक सैंपल ले लेंगे हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का, तो क्या होगा, ये मैग्नेटाइज हो जाएगा। अब ये कैसे मैग्नेटाइज हो जाएगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाएगा। इज क्लियर? यहाँ पे नॉर्थ प्रिपेयर होगा, यहाँ पे साउथ। अब ये जो नॉर्थ है इट अपोजेस द इनकमिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इज दिस क्लियर? तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहां से आ रही है ये इनको अपोज, ये नॉर्थ पोल इनको अपोज करेगा, देयरफॉर यहाँ पे जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड था पहले, ये अब डिस्टर्ब हो जाएगा। इज दिस क्लियर? ओके, अब ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, ये ड्यू टू दिस अपोजिशन दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल प्रेफर नॉट टू पास थ्रू दिस डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो ये जाएंगे यहां से ऐसे। इज दिस क्लियर? ये डिस्टर्ब होगा यहां से, these are the magnetic field lines now. पहले सीधे जाती थी, अब ये सीधे नहीं जाएंगे because of the opposition. And now the magnetic field lines here shows that they prefer not to pass through the diamagnetic substance. तो यहाँ पे देखेंगे magnetic lines of force prefer not to pass through them. Them means diamagnetic substances. Is this clear? Okay. अब एक और प्रॉपर्टी है। अब देखिए यहाँ पे, अब हमने इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रही है, तो ये कितना अलाउ करेगी, कितना परमिट करेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को टू पास थ्रू इट। This is an ability of a substance, and this ability is called magnetic permeability. Magnetic permeability. Magnetic permeability. जैसे से इलेक्ट्रिक परमिटिविटी होती है, इसी तरह से मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती है। ठीक है, तो ये कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अलाउ करेगा। ठीक है, सो इट इज द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ the substance to permit the magnetic field lines to pass through it. Is this clear to you? Okay. इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी। अब जब यहाँ पे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये मैग्नेटाइज होता है मैग्नेटिक फील्ड में अपोजिट डायरेक्शन में, तो देयरफॉर ये अपोज करेगा। जैसे अभी मैंने बता दिया, किनको, जो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उनको ये अपोज करेगा, उनको ये अपने अंदर पास होने नहीं देगा। Is this clear to you? ओके, सो बहुत कम फील्ड लाइंस इसमें पास हो जाती है, तो इसकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी जनरली कम होती है। इज दिस क्लियर? ओके, अब अगर हम इसको कंपेयर करेंगे विद रेस्पेक्ट टू दैट ऑफ वैक्यूम, तो उसको कहते हैं रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। ठीक है, तो रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी जो इसकी होती है, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी, वो किससे बराबर होती है, मैग्नेटिक फील्ड and the diamagnetic substance divided by the magnetic field in free space. Is this clear? पहले मैग्नेटिक फील्ड था किसी रीजन में, ये रीजन लिया था हमने पहले, जब हमने यहाँ पे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं रखा, तो इस रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी थी वो यूनिफॉर्म थी हर एक जगह।
ठीक है, अब जो ही मैंने यहाँ पे डायमैग्नेटिक सबस्टेंस रख दिया, इस रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड है अब विद इन दिस डायमैग्नेटिक सबस्टेंस वो कम हो गया, इज दिस क्लियर, वो डिक्रीज हो गया। तो इट मीन्स दैट ये जो बी है ये कम है, इट इज लेस देन दैट ऑफ बी नॉट। बी नॉट इज द मैग्नेटिक फील्ड इन द फ्री स्पेस, इज दिस क्लियर, हियर बी नॉट इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। तो बी नॉट ज्यादा है, बी कम है, तो इसका ओवरऑल वैल्यू क्या होगा, म्यू विल बी लेस देन 1, इज दिस क्लियर, म्यू विल बी लेस देन 1, इज दिस क्लियर टू यू। तो इसका मतलब ये हुआ रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी इज ऑलवेज लेस देन unity. Relative magnetic permeability of what? Diamagnetic substance is usually is always less than unity. ये unity से कम होता है इसका वैल्यू, is this clear? Okay. अब इसी तरह से क्यों होता है कम, क्योंकि ये मैग्नेटाइज होता है अपोजिट डायरेक्शन में, is this clear? ये अपोज करता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को। अब जो ही हम ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड रिमूव करेंगे, अगर हम ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड इस तरह से रिमूव करेंगे, व्हाट विल हैपन, जो सैंपल पहले मैग्नेटाइज हुआ था अपोजिट डायरेक्शन में, ये खुद ब खुद जल्दी इंस्टेंटली डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, इज दिस क्लियर। ये नॉर्थ पोल यहां से ये साउथ पोल डिसअपियर हो जाएगा। ये तब तक मैग्नेट रहता है जब तक अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होता है, इज दिस क्लियर। ओके, तो इट मीन्स दैट their magnetization disappears as soon as magnetizing field is removed, ठीक है। their magnetization disappears, यानी कि they lose magnetization as soon as the magnetizing field is removed। जो ही हम applied magnetic field या magnetizing field रिमूव करते हैं तो इसमें जो all the traces of magnetization होते हैं वो disappear हो जाते हैं, is this clear to you? ये demagnetize हो जाता है। तो एक और प्रॉपर्टी इसी तरह से, अगर हम एक डायमैग्नेटिक सबस्टेंस को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इट विल टेंड टू मूव फ्रॉम ए रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू ए रीजन ऑफ वीकर मैग्नेटिक फील्ड। क्यों? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में इसको ज्यादा अपोजिशन मिलेगी, ठीक है ना। तो वीकर रीजन में जहां पे वीकर मैग्नेटिक फील्ड होगा वहां पे इस पे अपोजिशन कम होगी, इज दिस क्लियर टू यू? देयरफॉर इफ प्लेस and non-uniform magnetic field, they tend to move from a region of stronger magnetic field to a region of weaker magnetic field, ठीक है। If placed in non-uniform magnetic field, they tend to move from a region of a stronger magnetic field to a region of weaker magnetic field. Is this clear to you? इसी तरह से अगर हम इसको एक ले लेंगे बार ऑफ ए डायमैग्नेटिक सबस्टेंस, इफ वी प्लेस इट इन व्हाट वी कॉल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले लेंगे। मान लीजिए यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, स्ट्रॉन्ग साउथ पोल, इसके दरमियान जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म, ठीक है। अगर हम इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में from a rigid support by means of a string, एक
बार मैग्नेट के इसका बार डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का एक रॉड हम ले लेंगे या बार एक ले लेंगे, वो सस्पेंड करेंगे इसमें, ठीक है, इस तरह से जी हम इसको सस्पेंड करेंगे। इसके दो एक्सिस होते हैं, एक एक्सिस है लॉन्गेस्ट एक्सिस, दूसरी है शॉर्टेस्ट एक्सिस, ठीक है। इट विल अलाइन इटसेल्फ इन अ डायरेक्शन विद इट्स लॉन्गेस्ट एक्सिस परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इज दिस क्लियर टू यू? यहां पे लिखेंगे हम एक और प्रॉपर्टी, इफ a bar of a diamagnetic substance is suspended from a rigid support is suspended from a rigid support in a uniform magnetic field it align itself with its longest axis perpendicular to the applied perpendicular to the external magnetic field. Is this clear to you? इस तरह से प्रॉपर्टीज हमने तकरीबन सारी डिस्कस की है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। टिल देन गुड बाय।